Hello dear students, welcome to the class today. As you all know, we are carrying on with this chapter 2, Nationalism in India. A lot of points we have done. Here we have talked about, we are talking about, actually we have not talked about, but we are talking about non-cooperation movement. And we have already discussed about the countryside, Gaon. Then we have also discussed about the towns. Okay, towns may we have discussed about the datas that were there. Please remember those datas. Countryside may that we have discussed. I'm just revising, as you know, I'm in a habit of revising the previous thing, the previous topic that we have already completed. So I just wanted to make it very clear that certain points are there, certain things are there that needs to be very clear. अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर प्रॉब्लम हो. I don't want you to do that. Get score maximum in the boards. That should be our motive. यही हमारा मोटिव होना चाहिए. तो this will make your things very strong. Got it, children? So what happened कि टाउन्स में जो हमने पढ़ा, अच्छा टाउन्स में वन थिंग दैट वी हैव फॉरगॉट दैट द बॉयकॉट ऑफ द इलेक्शंस was done in the North India. I'm so sorry, last class में I forgot it. So I'm just reminding you that in the towns, the movement that was there, उसमें the boycott of elections were done by the North में Congress. लेकिन in the South, there was the Justice Party who participated in the elections. They said कि for the first time they are getting, and the Justice Party was a party of the non-Brahmins. So they said that they are getting a chance to participate in the elections. They would be surely participating in the elections. As for the first time they are getting a chance to be in power. So they wanted to enjoy the power and they wanted to witness that power. Got it, children? So this is there. Now, the next thing that we had started, the next topic that we had started, countryside mein you need to remember about Audh Kisan Sabha. Then you need to remember about the Nai and the Dhobi Bandh. Yes, we have discussed now that the Jagirdars, Talukdars, Zamindars, they were very rich people. So they will not go to the barber shop. ये नाई के यहाँ पे जाके अपने बाल नहीं बनवाएंगे. So the barber used to come to their house, Nai. And the zamindar house, the ladies are there. तो zamindar की औरतें हैं तो वो क्यों, they will not wash the clothes and all. तो धोबी used to come and wash the clothes and everything. Now what happened? ये सारी चीजें वो करते थे, उन्होंने बंद कर दिया. तो imagine the condition of the zamindars. हाँ, कितनी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी होगी. एंड देन इमेजिन द कंडीशन ऑफ द तालुकदार्स. हाँ, ऑल दीज पीपल हु वर वेरी यूज टू द सर्विसेज ऑफ द लोअर क्लास. ये जो बहुत इनको डरा के, धमका के, सता के जो काम करवाने की आदत थी ना, अभी इससे इनको बहुत परेशानी हो रही थी. सो नाई एंड धोबी बंद इज इम्पोर्टेंट. बाबा रामचंद्र इज इम्पोर्टेंट. You need to talk about the Fiji and the indentured labor and the establishment of Audh Kisan Sabha with the help of Jawaharlal Nehru. Problem कहाँ पे होती थी? Problem was there when Gandhi ji was carrying on a movement which was absolutely based on non-violence. Suddenly the people accustomed to violence. So most of the problems, सारी जो problem की जड़ थी वो यहीं से शुरू होती थी. Gandhi ji said, Gandhi ji was very clear in his mind. When I am saying a non-violence, that means a non-violence. So why violence is being practiced? लेकिन ये क्या था ना कि all these people, अभी एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी मैं. One thing that has come to my mind, I just wanted to share it with you. That before the coming of Mahatma Gandhi, I am talking about the movement that was being carried on before 1940. ऐसा तो है नहीं कि the national movement was not carried on. National movement was very well carried on before 1914 also, but till that time, during that time, it was all restricted to the classes.
क्लासेस मीन्स एलीट ग्रुप, बहुत पढ़े लिखे जो लोग थे, बहुत ज्यादा आई मीन एजुकेटेड पॉपुलेशन दैट वाज देयर. गांधी जी के आने के बाद द फ्लो ऑफ द मूवमेंट वाज चेंजिंग, माय डियर चिल्ड्रन. From the masses, from the classes, the movement was moving to the masses. Masses में क्या है? अरे भाई, India is an agricultural based economy. So 80% people are involved into agriculture. तो ये जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, खेती वेती करने वाले लोग हैं, गॉट इट. तो इनको अगर समझाना है, इनको अगर अपने मूवमेंट में शामिल करना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनके हिसाब से ही सारी चीजें उनको समझानी पड़ेगी. एंड दे वर द पीपल वेरी इलिटरेट, वेरी इनोसेंट. बिलीव मी चिल्ड्रन, गांव के जो लोग होते हैं बहुत इनोसेंट होते हैं. उनको बिल्कुल भी छल कपट और ज्यादा मतलब कि दिमाग चला के काम करने की आदत नहीं होती है. तो व्हेन दे गॉट इन्वॉल्व, तो ये इनको दे वर अंडरस्टैंडिंग स्वराज, दे वर अंडरस्टैंडिंग नॉन कोऑपरेशन, बट दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग नॉन वायलेंस. And non-violence, as we have already studied, satyagraha is the weapon of the weak. It needs lot of strength. इतना ज्यादा उसमें ताकत चाहिए, my dear children. Got it? So the strength that is required, the strength that was needed, वो for the first time was provided through this movement. ओके, नॉन वायलेंस नहीं हो पा रहा था, ये कहीं कहीं पे वायलेंस हो रही थी. सेम थिंग हैड हैपेंड वेयर वी हैड स्टार्टेड द ट्राइबल मूवमेंट. स्वराज वाज द थिंग, and the village people, they have made up their minds that the tribal people, because the forest region was there, and colonial government have captured lot of big forest areas. तो फॉरेस्ट एरियाज जहां पे ये रह रहे हैं, द ट्राइबल पीपल वेयर दे आर स्टेइंग, दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट व्हेन दे वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द फॉरेस्ट. खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, जानवरों को चराने के लिए घास वास चाहिए, ग्रीनरी इज नीडेड, फॉडर इज नीडेड. तो नाउ दे फेस प्रॉब्लम्स, देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड. मतलब उनका जो पैसे कमाने का जरिया था वो अफेक्ट हो गया, एंड दे फेल्ट दैट ट्रेडिशनल राइट्स वाज आल्सो बीइंग डिनाइड. तो दिस मूवमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जो ट्राइबल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली इट हैड स्टार्टेड इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में ये शुरू हुआ. एंड रिमेंबर, इट वाज प्रॉब्लम कहां पे हुई? जहां पे कि इट वाज मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट. ये क्या करते थे ना सर, दैट द ब्रिटिशर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, व्हेन द आर्मी इज टू बी टेकन, घोड़े वाले, हाथी वाले, ये सारे तो जंगलों के रास्ते से जाएंगे, तो दे यूज्ड टू अटैक. They used sudden attack that was there. This was a technique that was employed by Shivaji. शिवाजी का टाइम का ये है कि वो मुगल्स के सख्त दुश्मन थे. So he was big enemies. So he was the one who had founded out this tactics of guerrilla warfare. So tribals carried on with the guerrilla warfare, and they were very much enraged because of the implementation of forest laws. And who was the leader? Of course, the leader was Alluri Sitaram Raju. He said, और ये बार बार ये बताते थे कि he can, ये जो भविष्यवाणी करते हैं, the astrological predictions that he is doing, कि आज तो बारिश होगी, आज 10 लोगों की तबीयत खराब हो गई, तो people believed him, क्योंकि अंधविश्वास था. It was like I told you ना, illiterate people, सारी चीजों की समझ तो है नहीं, तो भोले भाले लोग, जैसे भी इनको समझ में आता था, इनको लोग टहला देते थे. ओके, तो ही टुक एडवांटेज ऑफ दैट. राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, one of the very popular leaders of the Indian national movement in the Gudem Hills of Andhra Pradesh. Now what happened? Captivated by Raju. Captivated, एक हिंदी में एक वर्ड होता है, मंत्र मुग्ध हो जाना. लोग उनकी बातें सुन के सोचते थे, ओह वाओ, व्हाट अ लीडर, क्या बात है, ऐसे ही लीडर होने चाहिए. तो पीपल यूज्ड टू फॉलो हिम एंड हिज एडवाइसेस ब्लाइंडली,
कि जो राजू कह रहे हैं वही चीज करना है. एंड ही सेड कि ही कैन सर्वाइव द बुलेट शॉट्स ऑल्सो. ब्रिटिशर्स ने अगर गोलियां चला दी तो इनके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होगा. तो द रिबल सेड दैट उनको कितनी बार क्या होता था, राजू अलूरी सीताराम राजू वॉज रिवर्ड एंड ही वॉज वर्शिप्ड एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड. ये भगवान के अवतार हैं एंड ऑल दैट, यू नो. Yes, illiterate people think about in that manner only. चूंकि हम पढ़े लिखे इसलिए हमको मजाक लग रहा है, लेकिन उनके लिए when Raju used to show his powers and used to speak like this, so people were very impressed by his moves and by his ways of interaction. Now what happened? Raju was the person who had visited cities and he has seen Mahatma Gandhi. Okay? अल्लूरी सीताराम राजू, मैं बार बार लिख रही हूं ना ताकि आपको स्पेलिंग याद हो जाए. वॉज कंसिडर्ड एज गॉड बाय ट्राइबल्स. ही टॉक्ड अबाउट गांधी जी के बारे में इन्होंने ही लोगों को बताया. ट्राइबल एरियाज में, जंगलों में इन्होंने बताया कि गांधी बाबा नाम के एक है. अच्छा, ये भी लिखना कि व्हाई ही वाज वेरी पॉपुलर अमंग्स द ट्राइबल्स. तो ही सेड कि ही कैन सर्वाइव द बुलेट शॉट्स, दैट्स व्हाई ही वाज कंसिडर्ड टू बी एज मोर पॉपुलर पर्सन. एंड he talked of the greatness of Mahatma Gandhi. He was inspired by the non-cooperation movement. And he asked the people, उन्होंने लोगों से कहा to wear khadi. And his greatness. He asked the people to wear khadi. कहा कि खादी का इस्तेमाल कीजिए. गिव अप ड्रिंकिंग. देखो, कुछ चीजें अच्छी थी. व्हेन द रिफॉर्म इज हैपनिंग, सम थिंग्स आर रियली गुड. तो द रिफॉर्म हैज टू हैपन इन दैट मैनर ओनली. इसी तरह से लोगों ने चाहा कि दे वांटेड दैट द मूवमेंट शुड बी कैरिड फॉरवर्ड. लेकिन ही असर्टेड दैट इंडिया को अगर लिबरेशन चाहिए, इफ इंडिया नीड्स टू बी फ्री, इंडिया नीड्स टू बी लिबरेटेड, तो हमको जो है नॉन वायलेंस नहीं फॉलो करना है. वी डोंट हैव टू फॉलो नॉन वायलेंस. थोड़ा सा वायलेंस हमको मारपीट करनी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स को उनका जगह दिखाना पड़ेगा, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो. इस तरह की चीजें बोल के उन्होंने ना लोगों को अपने तरफ करने की कोशिश की. द रिबेल्स हु वर देयर, दे अटैक द पुलिस स्टेशंस. Woodend rebels attacked police station. Got it? And carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Please, warfare. Please understand कि राजू को कैप्चर कर लिया गया 1920 में. व्हेन ही हैड स्टार्टेड द मूवमेंट, बहुत पॉपुलर हुआ, एंड राजू वॉज कैप्टिवेटेड. ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1924. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दैट राजू वॉज एग्जीक्यूटेड in 1924. डेट याद रखना, क्योंकि आप जब वुडेन हिल्स की कहानी बताते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्राइबल मूवमेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्राइबल स्टोरी, व्हेन यू टॉक अबाउट द गुरिल्ला वॉरफेयर, तो अलूरी सीताराम राजू का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हिज मार्क in this movement and his guidance to the people was very remarkable.
He had really inspired the people. Though he did not follow the non-violence, but he was very much able to guide the people in a right direction. लोगों को सही रास्ता तो इन्होंने दिखाया, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है. Got it? That's why we need to remember the contribution of Alluri Sitaram Raju. Got it? And he became a folk hero. He was executed in 1924 and became a folk hero. गांव में मतलब ट्राइबल प्लेसेस में his name was taken in with lot of respect. स्वराज हो गया भाई. अभी क्या हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है. हमने शहरों के बारे में बातें कर ली, हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिटीज, वी हैव टॉक्ड अबाउट द विलेजेस, countryside, we have talked about the tribal areas. One place where the people were really troubled और जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ बड़ी तरीके से मूवमेंट चलाना चाहते थे. The one group that was really into trouble were the people who were working in the plantations. So here we understand Swaraj in the plantations. Got it? क्योंकि अभी क्या था, ट्राइबल्स अपने तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे. गांव में पीसेंट्स एंड फार्मर्स का अपना तरीका था. एवरीबडी वाज पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन. लुक एट द रिमार्केबल थिंग. पार्टिसिपेट सब लोग कर रहे थे, सबका अपना अलग अलग तरीका था. लेकिन जो द पीपल हु वर देयर इन द प्लांटेशंस, उनका भी पार्टिसिपेट करने का एक कारण था. दे हैड अ रीजन टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट. गॉट इट? सो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम का क्या मतलब था? प्लांटेशन वर्कर्स इन असम. असम में क्या है? प्लांटेशंस, यस ऑफ कोर्स, टी प्लांटेशंस. ये जो चाय के बागान होते हैं, इसमें ये लोगों को काम करवाते हैं. द ब्रिटिशर्स, they make the people work in these tea gardens, and I have previously also told you that working in the tea gardens is a tough task. It's a very harsh duty. तो दिन भर धूप में खड़े रह के चाय की पत्तियां तोड़ना और उसको पीछे में बास्केट होता है, उस बास्केट में डालना, आई मीन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो इनके लिए क्या था? व्हाट डिड स्वराज मेंट फॉर देम? इट मेंट to the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed. ठीक है? For plantation workers, Swaraj meant to move freely. सिंपल में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इनको एकदम बंधुआ मजदूर बना के रखा गया था. दे वर जस्ट लाइक लेबरर्स. लाइक क्या? दे वर लेबरर्स. लेकिन लेबरर्स को इतना हक है कि वो अपने घर जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. लेकिन दीज वेर द कैटेगरी, दीज वेर द पीपल जिनको कि घर जाने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं था. गॉट इट? दे वेर नॉट अलाउड टू गो बैक टू देयर होम्स. Once brought in the plantation, the Britishers have passed a law that was Immigration Act of 1859. एक्ट का मतलब लॉ बना दिया ना, कानून बन गया. अब आप वापस नहीं जाए. ई माइग्रेशन, ठीक है? ई माइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. इसके हिसाब से क्या था? प्लांटेशन वर्कर्स वे आर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन्स. गॉट इट? प्लांटेशन वर्कर्स
were not allowed to leave the tea gardens. हमेशा ऐसे कैसे कोई सारे टाइम काम कर सकता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. मजदूर हैं, लेकिन मजदूर हैं, फैमिली भी है, हार्ट भी है, चोट भी पहुंचती है, अपने परिवार का ध्यान भी आता है. How can you ask them that not to interact with the family, go back to their houses? तो they were rarely given any permission. इनको परमिशन ही नहीं दी जाती थी कि ये अपने, एंड यू नो वर्किंग इन द असम प्लांटेशन, असम में काम करने के लिए पता है, दे यूज टू ब्रिंग द वर्कर्स एंड ब्रिंग द लेबरर्स फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड. मतलब अगर भागने की सोचेंगे भी तो पता ही नहीं है कहां से जाना है. दे एक्चुअली डिड नॉट नो हाउ टू गो बैक. और किसी तरह का निकल भी गए तो पहुंचते पहुंचते ही जब तक पहुंचेंगे, बाय दैट टाइम दे वर अरेस्टेड एंड द स्ट्रिक्ट एक्शन वाज टेकन. सो दे व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन, इनको जब सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन के बारे में पता चला, तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, हजारों वर्कर्स जो हैं, इन्होंने क्या किया, दे डिफाइड द अथॉरिटीज एंड लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम. इनके लिए देखो नॉन कोऑपरेशन क्या था. व्हाट डिड नॉन कोऑपरेशन मेंट फॉर देम? दे लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड दे हेडेड बैक होम. इनके लिए प्लांटेशन, इनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब था गोइंग बैक होम फ्रॉम द प्लांटेशंस. ओके, सो नॉन कोऑपरेशन means going back to their homes. So what they were doing, they were defying this order. ये जो लॉ बना हुआ था ना, इस लॉ के खिलाफ जाके ना वो ये काम कर रहा है. लॉ बना हुआ है ना, लॉ बना हुआ है मतलब यू कैन नॉट लीव दैट प्लेस. एंड दे बिलीव्ड, इनको लगा कि गांधी राज हैज कम एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस, कि अब हम वापस अपने विलेज चले जाएंगे. वहां पे ऑब्वियसली दीज पीपल हु वर वर्किंग इन द प्लांटेशंस, वंस अपॉन ए टाइम दे वर वर्किंग इन देयर ओन फील्ड्स एज फार्मर्स. ये किसान के ही फैमिली के थे, ये किसान के ही कैटेगरी के थे. तो उनके लिए वर्किंग इन द प्लांटेशन, आई मीन working like this in the plantation was a real torture, where forcefully they were working in these plantations and they are not allowed to go back. So they never reached their destination, kabhi pahunch to nahi paate the, going back to their home and practicing agriculture. And practicing एग्रीकल्चर, खेती करेंगे. इनको ये समझ में आ रहा था. तो ये पहुंच नहीं पाते थे अपने घर में कभी भी. दे वर अनेबल टू रीच टू देयर डेस्टिनेशंस एंड कभी रास्ते में ही दे यूज टू स्टॉप. दे वर स्टॉप्ड बाय द, स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक. दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप. ठीक है, they were caught at stations. कितनी बार आसाम से क्या होता है ना कि बंगाल इज नियर बाय, तो वो ये सोचते थे कि जल्दी से बंगाल पहुंच जाते हैं, वहां से फिर स्टीमर लेके या जहाज लेके फिर वापस से गुजरात के कोस्टल एरिया वहां चले जाएंगे. Got it? So they used to follow the waterways के थ्रू भागना चाहते थे, but they were caught. Okay, they were caught. They were caught at stations. Okay, and brutally beaten. बहुत ही बुरा इनको मारपीट पड़ती थी. Imagine. And brutally beaten up. Now, this is the place, this is the time
when they understood that Gandhi era has started, गांधी बाबा का टाइम आ गया है, द मूवमेंट, अभी कांग्रेस क्या था ना, प्लांटेशन में जो चल रहा था, कांग्रेस वॉज नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट. उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि प्लांटेशन वाले वर्कर्स को सपोर्ट करना है नहीं करना है, बिकॉज दे क्लियरली डिड नॉट हैड आइडिया. लेकिन द प्लांटेशन वर्कर्स, दे हैव अंडरस्टूड अबाउट नॉन कोऑपरेशन. दे वांटेड टू कैरी ऑन विद दिस नॉन कोऑपरेशन. वो चाहते थे कि ये चले, एंड दे रेज्ड द स्लोगन. जब उनको स्वराज के बारे में पता चला तो ये इन्होंने एक स्लोगन लगाना शुरू किया. जब वहां से भागते थे तो they used to say a slogan. They said a slogan. क्या था? Please remember. स्वतंत्र भारत, फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत. हाँ, इंडिया में अभी फ्रीडम का टाइम आ गया है, स्वतंत्र भारत. आई एम सॉरी. इस तरह के नारे लगा रहे थे ये लोग. एंड दे वेर सो दे वेर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एजिटेशन. इमोशनली भी इनको लग रहा था कि कोई तो है जो हु इज फाइटिंग फॉर अस, हु विल गिव अस जस्टिस. इतना इनजस्टिस हो रहा था इनके साथ. तो नाउ दे वेर फाइंडिंग, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि बिल्कुल अंधेरे में एक आशा की किरण नजर आ रही थी. अ रे ऑफ होप इन एक्सट्रीम डार्कनेस. Got it? That was their mark. That was their way of understanding the movement. They acted in the name of Mahatma Gandhi. They linked their movement to Congress, but they were, I mean, immediate locality में whatever was the understanding of the people about the movement, उससे अलग हटके इनका movement चल रहा था. The plantation worker and their movement was carried on in a very different manner. The way local people were understanding it, उस तरह से उससे अलग इनका मूवमेंट चल रहा था. Now withdrawal of the movement, biggest incident in the Indian history, which is criticized by historians. Withdrawal of non-cooperation movement. I am writing it in the short. Please don't write it in your answer sheets in your boards. Withdrawal of non-cooperation movement कैसे हुआ? Incident at चौरी चौरा. क्या था? What was this? चौरी चौरा was a place जहां पे कि peasants जो हैं, जो किसान कैटेगरी was there. उनका ब्रिटिशर्स के साथ बहुत झगड़ा हो गया. ब्रिटिशर्स for something they were forcing them, so they refused for that. तो जब इनका झगड़ा हो गया तो उसमें क्या हुआ? द ब्रिटिशर्स ओपन फायर ऑन देम, एंड एज अ रिजल्ट अराउंड 4-5 विलेज पीपल वर डाइड. At night, what did this village people do? They came back and they were so enraged with anger. They came back and they burned the police station, and 22 policemen were killed. Chauri Chaura incident that had happened, incident at Chauri Chaura in 1922. Gandhiji was arrested and Gandhiji said to the Britishers कि आई एम मॉरली रिस्पॉन्सिबल. मैंने ये मूवमेंट शुरू किया था. आपके जो 22 पुलिसमैन मरे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्लीज अरेस्ट मी. एंड गांधीजी वॉज अरेस्टेड इन 1922. एंड दैट इज हाउ दिस बिग मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इट केम टू एन एंड. गॉट इट? सो दिस इज व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. Next class में what we are studying, we will be studying about the civil disobedience movement and its preconditions. Got it, children? So students, just now that we have discussed, please, my dear children, remember the name of Alluri Sitaram Raju, and he had claimed that he had variety of special powers and he can make astrological predictions. ये मैं आपको इसलिए मार्क करा रही हूँ. I am making it mark because at times the question is asked about the kind of movement that was carried on by Alluri Sitaram Raju and his life. So when you have to write about the life and about the personality of Alluri Sitaram Raju, ये आपको mention करना ज़रूरी है. Got it, children?
Another thing that is important is he persuaded the people to wear khadi and give up drinking. अच्छा काम जो इन्होंने किया है, you need to highlight that. And he was executed, and Raju was captured and executed in 1924. And he became a folk hero. Please mention about this. Swaraj in the plantations. Children, please remember the Immigration Act of 1859, जहाँ पे plantation workers were not allowed to leave the plantation, and the slogan that was given by them, Swatantra Bharat. Do mention that. And then the Chauri Chaura incident. Just check out the informations that is given here. Okay, children. So just this is what I wanted to point it out. Till then, children, thank you so much and all the best to you.